Hello, dear students. A very happy Diwali to all of you. Dear students, celebrate this great festival with your friends, with your family. Use diyas, sweets, lights, but don't burn crackers. Pollution is already rising, and during this COVID 19 time, this rising pollution will add to further problems. At the same time, be very cautious of COVID safety guidelines. Through our videos, PPTs, and classes through Google Meet, we have been always reminding you to follow these COVID safety guidelines. Once again, I would revise for you these guidelines. Always wash your hands with soap. If soap is not available or water is not available nearby, then you can use sanitizer. Use mask when you go out of your house or you are in a crowd, and maintain social distance of at least 6 feet. So these are the COVID safety guidelines which you have already been knowing through other medias also, but still I would like you to be very careful of these guidelines, especially during this festival time. Now we come to worksheet number 53. This worksheet is based on the lesson The Black Aeroplane, which is the third lesson of your book First Flight, and written by Frederick Forsyth. For ages, man has dreamt of flying in the sky. And here in this lesson, this is the story of a pilot who, flying in the sky, encounters something mysterious, and that mystery always remains unsolved. ऐसे पायलट की कहानी है जिसे एक अजीब सी मिस्ट्री वहाँ पे मिलती है और वो मिस्ट्री कभी भी सॉल्व नहीं होती है. Let's read some main points of this lesson. The pilot is going to England. Pilot England जा रहा है, उसका एरोप्लेन है, उसका नाम है Old Dakota. The sky was clear when the author was flying his Old Dakota aeroplane over France to England. When the pilot started his journey, तो बिल्कुल स्काई क्लियर था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई क्लाउड्स नहीं थे. इट वॉज परफेक्ट क्लियर स्काई, स्टार्स वर शाइनिंग, और वो जा रहा था इंग्लैंड, अपने होम टाउन. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली एंड थॉट टू टेक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. वो सोच रहा था कि मैं कितना अच्छा होगा, अपने घर जाऊंगा, हॉलीडे मनाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करूंगा. इस टाइप से सोचते सोचते वो अपनी जर्नी में चल रहा था, उसका एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. बिल्कुल सब ठीक चल रहा था, बड़ी ईजी फ्लाइट थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. Paris was about 150 kilometers behind him when he saw the huge black mountain storm clouds in front of him across the sky. अब पेरिस उससे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था, तो सामने क्या देखा उसने? बड़े बड़े, ह्यूज इज वेरी बिग, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स, स्टॉर्म वाले, जैसे तूफानी से बादल आ गए उसके सामने. एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. The author could not see anything outside the aeroplane. एकदम सब कुछ काला, एकदम अंधेरा हो गया था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था जब क्लाउड्स सामने आ गए थे. ऑथर को बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, पूरी ही एकदम से सब कुछ हेजी था, कुछ भी विजिबल नहीं था. नाउ द ऑथर, द ओल्ड एरोप्लेन jumped and twisted in the air. The compass, radio, and other instruments suddenly stopped working. एरोप्लेन तूफान में, हवा में इधर उधर उछल रहा था, और अचानक एरोप्लेन ने के जो सिस्टम थे, कंपस होते बेटा दिशा, जो डायरेक्शन बताते हैं, और रेडियो जिससे कि वो कांटेक्ट करते हैं एयर स्टेशन पर, और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया.
नाउ यू कैन इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द पायलट जो कि एरोप्लेन में है, सामने उसके ब्लैक क्लाउड्स हैं, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एंड ऑल द सिस्टम्स जो हैं एरोप्लेन में, जो भी कांटेक्ट करने के सिस्टम हैं या उसको डायरेक्शन देने के सिस्टम है, वो सब ने काम करना बंद कर दिया है. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर हिम he saw another aeroplane. It had no light on its wings, but he could see it flying next to him through the storm. फिर उसी ब्लैक क्लाउड्स में जहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, उसे नज़र आया एक और एरोप्लेन जिसके विंग्स पे लाइट नहीं थी, लेकिन उसको नज़र आ रहा था, उसके साथ साथ चल रहा था वो. He turned his aeroplane slowly to the north in front of Arthur's Dakota so that it would be easier for him to follow him. दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने अपना एरोप्लेन हमारे पायलट से आगे कर दिया ताकि हमारा पायलट जो है उसको आगे कोई नज़र आता रहे और वो उसको आराम से फॉलो करता रहे. सो यू कैन सी कि इस डिस्पेयरिंग कंडीशन में जहाँ पे कोई होप नहीं है, हमारे ऑथर को, हमारे पायलट को एक और पायलट नज़र आया. सडनली द ऑथर केम आउट द क्लाउड्स एंड, और ऑथर ने, हमारे पायलट ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. फॉलो करते करते उसके कुछ टाइम के बाद ऑथर जो है क्लाउड से बाहर आ गया और उसको नज़र आया सामने 2 रनवे की लाइट्स कि अब वो एयरपोर्ट पे, रनवे पे लैंड करने वाला है. इट वॉज़ अ रनवे एंड एयरपोर्ट. ही वॉज सेफ, और वो बहुत खुश हुआ कि मैं सेफ हूँ. द ऑथर टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. फिर ऑथर ने सोचा कि मैं उस अपने फ्रेंड को, कौन है उसका फ्रेंड, जिसने उसकी हेल्प की है, जो उसको उस क्लाउड वाले स्काई में उसको गाइड कर रहा था, लीड कर रहा था, लेकिन उसने जब मुड़ कर देखा तो वहाँ पे कोई और एरोप्लेन था ही नहीं. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. ही कुडंट सी इट एनीवेयर. वो एरोप्लेन चला गया वहाँ से, वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा उसको. ही वेंट एंड आस्क्ड अ विमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. जाके उसने पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ और दूसरा पायलट कहाँ है. एंड द लेडी सेड कि देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन, और स्काई में तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं. सो दिस रिमेन अ मिस्ट्री फॉर द पायलट कि वो कौन था दूसरे एरोप्लेन में जिसने उसकी हेल्प करी, उसको लीड किया, उसको गाइड किया, जबकि सब कुछ उसके पास, कोई भी उस समय जब कोई होप नहीं थी, क्लाउड्स थे बहुत ज़्यादा स्काई में, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, सिस्टम्स ने भी काम करना बंद कर दिया था. तो ये जो है एक मिस्ट्री हमेशा के लिए पायलट के मन में रही. तो अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ चैप्टर के जो हाइलाइट्स हैं, मेन और पॉइंट्स. द स्काई इज़ क्लियर विथ शाइनिंग स्टार्स. द ऑथर वॉज अबाउट टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट. ऑथर अपनी फैमिली को मिलने वाला था. एट 1:30 in the morning, ऑथर फ्लू इन हिज Dakota aeroplane and he was instructed to turn 12 degrees west by Paris control. सब कुछ स्मूथ चल रहा था. 1:30 पे सुबह सुबह ऑथर ने जब उसको इंस्ट्रक्शंस मिली पेरिस कंट्रोल रूम से कि उसको 12 डिग्रीज टर्न करना है, तो उसने टर्न भी कर लिया. ही वॉज अराउंड 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस. पेरिस से वो 150 किलोमीटर आगे जा चुका था. द क्लाउड स्टॉर्म्स अप्रोच्ड हिम. बादल आ गए उसके सामने. ही डिसाइडेड टू एंटर द स्टॉर्म. उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, अब वापस तो जा नहीं सकता हूँ, तो चलो स्टॉर्म में, बादलों में ही एंटर कर जाता हूँ, देखते हैं कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा. A risky decision of the author due to his willingness to see his family. ऑथर ने एक रिस्की फैसला लिया था क्योंकि उसको जल्दी थी अपने घर जाने की. He lost the way in the storm. और तूफान में वो क्या हो गया, रास्ता भूल गया. All the instruments stopped working. सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, कंपास और बाकी जो सिस्टम थे, वायरलेस सिस्टम वगैरह, सब ने काम करना बंद कर दिया. अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड बाय द ऑथर साइड इन द स्टॉर्म. और तभी तूफान में उसे नज़र आया एक और एरोप्लेन जो कि ब्लैक कलर का था और हमारे पायलट के
साथ में ही उसको नज़र आया। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द ब्लैक प्लेन। ऐसे लगा कि वो जो पायलट है, दूसरा एरोप्लेन का पायलट है, उसको इशारा कर रहा है कि मुझे फॉलो करो। विदाउट मच फ्यूल ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर। उसके एरोप्लेन में फ्यूल भी बहुत कम था। फ्यूल इज़ ऑयल जो चाहिए होता है, वो भी बहुत कम था, लेकिन वो उड़ता रहा उसके पीछे पीछे आधा घंटा। ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। और रनवे पे जाके बड़ी सेफली पायलट ने लैंड भी कर लिया। He went out from his aeroplane to thank the pilot of the black aeroplane. एरोप्लेन से उतरकर ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक करने के लिए जाने लगा। Got surprised not to find anyone there in the aeroplane. और बड़ी हैरानी हुई कि कोई और एरोप्लेन तो था ही नहीं। The author asked the women of control tower about the black aeroplane. कंट्रोल रूम में पूछा कि ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है। She laughed and replied in negative about such a plane. वो लेडी कंट्रोल रूम में जो थी, ऑफिस में जो थी, वो हंसने लगी कि क्या देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन, और कोई एरोप्लेन तो है ही नहीं। अ मिरेकल विद नो एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑथर विच सेव्ड हिज लाइफ। ऑथर के लिए एक मिरेकल था, एक चमत्कार था, जिसका कोई उत्तर नहीं था उसके पास कि वो कौन था। ये जो एक मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ, जिससे कि ऑथर की लाइफ भी बच गई, बिकॉज़ वहाँ पे तो पूरे क्लाउड्स थे और उसके पास फ्यूल भी कम था और सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया था। तो ये ऑथर के लिए हमेशा के लिए एक क्या रही, मिस्ट्री रही। अब आपको आई होप ये लेसन क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू द वर्कशीट नंबर 53, जो कि इस लेसन पर बेस्ड है, जिसे हमें अब सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में, वर्कशीट के स्टार्टिंग में आपको अपना नेम लिखना है। यहाँ पे नेम हो गया, नेम ऑफ द क्लास टीचर, या आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख दीजिए। ये एक्सट्रैक्ट जो इसमें दिया हुआ है इस स्टोरी का, ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यानी कि इस स्टोरी का आपकी जो लेसन नंबर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के 2 पार्ट्स हैं। एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि सी गर्ल के बारे में था, आपने पहले ही कर लिया है। अब ये लेसन है ब्लैक एरोप्लेन, जिसका कि फर्स्ट हिस्सा, मतलब हाफ पार्ट जो है इस वर्कशीट में कवर हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ऑल्दो लेसन आपको पूरा क्लियर हो गया, बट स्टिल आई विल रीड फॉर यू दिस पार्ट। दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। मिस्ट्री मैंने बताया था आपको। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डिकोटा एरोप्लेन। डिकोटा वर्ड याद रखना, उसके एरोप्लेन का नाम है। Suddenly he was caught in a big cloud and his compass, radio and other instruments failed. बादल आ गए सामने और वो फंस गया बादलों में, और उसकी जो कंपस थी, जो डायरेक्शन बताती है, दिशा सूचक जो है, वो रेडियो और बाकी सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। There wasn't much fuel in the plane. एरोप्लेन में फ्यूल भी नहीं था, ज़्यादा ऑयल भी नहीं था। Suddenly he saw a black aeroplane near him. The pilot in that plane guided him. As a result, he was able to land safely. दूसरे पायलट ने उसको गाइड किया और हमारा पायलट जो है वो सेफली लैंड कर पाया। But he was greatly surprised when the women in the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky that night. लेकिन वो बड़ा हैरान हुआ जब उसे पता लगा कि उस दिन स्काई में और कोई एरोप्लेन था ही नहीं, एक्सेप्ट उसका ही एरोप्लेन था। ये पार्ट पढ़ लेते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। मैंने बताया था आपको कि स्काई बिल्कुल क्लियर था, स्टार शाइन कर रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और एक भी क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। पायलट हैप्पी था कि वो घर जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली
I looked at my watch at 1:30 in the morning. फैमिली से मिलने के लिए वो बहुत खुश भी हो रहा था. I should call Paris control room soon. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. Everything was going well. It was an easy flight. और फिर मैंने क्या करा, अपना मैप चेक किया और पेरिस कंट्रोल रूम में बात की और अपना सेकंड फ्यूल टैंक स्विच ऑन करा, अपने डिकोटा को 12 डिग्रीज घुमा दिया. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. इट वाज एन ईजी फ्लाइट. सब कुछ ठीक चल रहा था. बहुत ईजी फ्लाइट थी. नाउ अब आते हैं हम इसके जो क्वेश्चंस हमें करने हैं उन पे आते हैं. हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन. वेदर कैसा था? वाज इट क्लाउडी? नो, इट वाज क्लियर वेदर. ये है आपका करेक्ट आंसर. बी जो है करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन that lists a set of statements that are not true. वो ऑप्शन चूज करिए जो कि सच नहीं है. The pilot was flying his old Dakota aeroplane over France back to Italy. क्या वो इटली जा रहा था? No, ये करेक्ट नहीं है. He wanted to enjoy his holiday with his family. Yes. The pilot saw storm clouds when he was only 50 kilometers away from Paris. पायलट ने स्टॉर्म क्लाउड्स तब कब देखे थे? जब वो 50 किलोमीटर दूर था. नो, वो 150 किलोमीटर दूर था. तो ये भी रॉन्ग हो गया. द ऑथर कंपेयर्स द क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन. यस, बिकॉज क्लाउड्स बहुत डार्क थे तो ब्लैक माउंटेन से उन्हें कंपेयर कर रहा है. द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल. क्या कंपास वगैरह जो थे वो बाद में उन्होंने काम ठीक से करना शुरू कर दिया? नो. तो ये सब आपका हो गया फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है. सो आपका आंसर होगा सी. विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट करस्पेंड टू. कंट्री साइड का सिनोनिम कौन सा नहीं है, यानी कि उसका कौन सा सिमिलर वर्ड इसमें नहीं है. कंट्री साइड होता है जैसे जो आपके शहर से परे होता है. लैंड आउटसाइड टाउन्स और सिटीज़. यस, ये तो है. रूरल एरिया, ये भी है गांव. बिग सिटी, ये नहीं है. तो आपका आंसर हो गया ये. बिग सिटी जो है ये कंट्री साइड का सिनोनिम नहीं है, यानी कि सेम वर्ड नहीं है. और रूरल रीजन भी कंट्री साइड जैसा ही होता है. तो इसलिए आपका आंसर सी होगा. इसमें सी करेक्ट है. फर्स्ट में बी करेक्ट है, सेकंड में भी सी करेक्ट है और थर्ड में भी सी करेक्ट है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 4 तो अराउंड 20 to 30 वर्ड्स में है एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग while he was flying his aeroplane back to England. ऑथर की फीलिंग क्या थी जब वो एरोप्लेन इंग्लैंड की तरफ लेके जा रहा था? The author was very excited to go back to his family and have a lovely breakfast with him. ऑथर बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था, एक्साइटेड था कि फैमिली से मिलेगा, उनके साथ ब्रेकफास्ट करेगा. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. जब ऑथर ने एरोप्लेन को 12 डिग्रीज लेके गया इंग्लैंड की तरफ तो क्या हुआ? तो व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड ही सॉ ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स विच लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. उसे दिखाई दिए बड़े बड़े क्लाउड्स जो कि माउंटेन जैसे बड़े बड़े थे. ही न्यू ही कुडंट फ्लाई अप
and over them, and he didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. So he took the plane inside the cloud. Everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane, and the compass and radio of the pilot was also dead. उसे मालूम था कि उसे कुछ नज़र नहीं आएगा, और इसलिए उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो वापस चला जाता। तो उसने अपना एरोप्लेन बादलों में ही एंटर हो गया। वो सब कुछ डार्क था, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था बाहर से, और कंपास रेडियो वगैरह जो थे सब कुछ वो सारे भी काम करने उन्होंने बंद कर दिए थे। तो ही वॉज इन अ सिचुएशन वेयर ही हैड नो होप, कोई भी होप नहीं थी। सो ये आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है, एंड यू हैव टू सबमिट टू योर कंसर्न्ड सब्जेक्ट टीचर्स बाय tomorrow. Okay, thank you. Happy Diwali to all of you. Enjoy this Diwali, but remain safe. Thank you.